بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج پھر دوبارہ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ 3-4 دن کا ناغہ ہے، اور اس کی وجہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ رمضان المبارک کی مصروفیات اور صحت کے مسائل دونوں ہی آڑے آتے ہیں۔ آپ الحمدللہ سب مصروف ہیں۔ اللہ کریم یہ دن جو رہ گئے ہیں، نصف مہینہ تو گزر گیا، باقی جو دن رہ گئے ہیں اللہ پاک اس کی برکتیں رحمتیں سمیٹنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، فرما برداروں میں شامل فرمائے۔ رمضان پاک جن سے راضی ہوگا ان میں اللہ کریم ہمیں شامل فرما لے۔ حکومت ڈگمگا رہی ہے اور بڑے بڑے ہچکولے کھا رہی ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی کشتی بان جو ہے وہ اناڑی ہو اور تھوڑی سی بھی لہر پانی کی تیز آئے تو ہچکولے کھانے لگ جاتے۔ اس طرح ابھی سنبھل نہیں پائے تو ہچکولے جھٹکے بڑے بڑے جھٹکے لگنے لگ گئے ہیں، اور جھٹکے بھی کوئی غیر نہیں لگا رہے، اپنے ہی لگا رہے ہیں۔ ادھر رانا ثناء اللہ بیٹھا ہوا ہے، ادھر حنیف عباسی ہے، جاوید لطیف ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں یہ شہباز اور نواز کی لڑائی ہے۔ شہباز اور نواز آپس میں سیٹ نہیں ہے، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن کچھ نظر ایسے ہی آ رہا ہے کہ نواز شریف کا گروپ بول رہا ہے، شہباز شریف کا گروپ ابھی سیٹنگ کر رہا ہے کہ ذرا وزارتوں پہ ہم سیٹ ہو لیں، لیکن ایسی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ اللہ مان اللہ حفیظ۔ رانا ثناء اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرما دے، دعائی کرنی چاہیے۔ بہت ظالم آدمی، اتنا ظلم اس نے کیا ہے کہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ بولنے کی بجائے رمضان المبارک میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ کرے، اور جن لوگوں پہ ظلم کیا ہے ان سے معاف کروائے اپنا ظلم، اس لیے کہ آگے جا کے حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ حقوق اللہ تو اللہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا، حقوق العباد والے لوگوں پہ جو ظلم کیا ہے جب تک وہ معاف نہیں کریں گے اس وقت تک معافی نہیں ملے گی۔ رانے کی خواہش تو یہ تھی کہ میں کنٹینیو کروں، لیکن عوام نے پٹخ دیا، عوام نے ایسا دھوبی پٹکا لگایا ہے کہ رانا صاحب اب ضمنی الیکشنوں سے بھی گھبرا رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ان انتخابات میں حصہ بھی نہیں لیں گے۔ انتخابات میں حصہ لیں بھی تو پتہ تو ہے ہی جو کچھ ہونا ہے، اس لیے مسلم لیگ کے بڑے بڑے لیڈر سارے ہی ڈر رہے ہیں، لرز رہے ہیں، خوف زدہ ہیں۔ عوام نے جو فیصلہ دیا اس پہ بڑا ڈاکو الیکشن کمشنر بیٹھا ہوا ہے، وہ اس دفعہ دنیا مان گئی کہ جتنی دھاندلی پاکستان کے الیکشن میں اس دفعہ ہوئی ہے، روئے زمین پہ کسی ملک میں اس طرح کی دھاندلی کبھی نہیں ہوئی۔ یعنی ابھی تک وہ سیٹوں کی عدل بدل کر رہا ہے، جس کو چاہتا ہے جیتے ہوئے کو ہروا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہرے ہوئے کو جتوا دیتا ہے۔ تو رانا ثناء اللہ مسلسل بکواس والے موقف پہ ابھی تک بھی چل رہے ہیں۔ چند روز پہلے 3-4 دن پہلے انہوں نے کسی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے عمران خان کو قتل کی دھمکی دی۔ سوشل میڈیا پہ جب شور پڑا تو پھر اس بیان سے مکر کے، جیسے سیاستدانوں کی عادت ہے، اب پہلے کچھ اگلے دن کچھ کہہ دیا۔ لیکن اس سے ان کے عزائم، ان کے خطرناک ارادے اور ان کی نام نہاد جمہوریت جو ہے اس کی ایک تصویر آپ کو نظر آتی ہے۔ ان کا بس چلے تو انہوں نے کوشش تو کی تھی، انہوں نے قاتلانہ حملہ خان پہ وزیر آباد میں کروایا تھا، پوری کوشش کی تھی، اور جو گولیاں چلانے والا تھا وہ ضمانت پہ پھر رہا ہے، اور جس پہ گولیاں چلی تھیں اس کی ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوئی۔ پنجاب میں ان کی حکومت تھی۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ تھے، اب وفاق میں رانا صاحب وزیر داخلہ تھے، اور رانا صاحب نے ایف آئی آر درج نہیں ہونے دی۔ رانا صاحب اب وہی موج میلہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم پہلے کرتے رہے ہیں، جس کو چاہا اٹھا لیا، جس کو چاہا بند کر دیا، جس پہ چاہا تشدد کیا، کئی مہینے تک مارا پیٹا، اور پھر جس کو چاہا چھوڑ دیا، جس کو چاہا نہیں چھوڑا۔ بہت سارے ان گنت لوگوں پہ ظلم ہوا اس دور میں۔
अल्लाह रब्बुल आलमीन मेहरबानी फरमाया, अल्लाह ने इनके मुंह काले कर दिए, जालिमों के मुंह स्याह कर दिए। अब ये चाहते हैं कि वही कुछ चले, हमारी मर्जी चले, हुकूमत इनकी है। लेकिन अब वजीर दाखिला मोहसिन नकवी है, उसे किसने बनाया है ये सब जानते हैं। उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की शहबाज सपीर ने और उसके साथियों ने। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करूंगा, तुम्हारे अंडर काम नहीं करूंगा, मातहत काम नहीं करूंगा, मैं बड़ों का नुमाइंदा हूं, जरा होश संभाल के। मुझे सेक्रेटरी दाखिला भी अपनी मर्जी का चाहिए, आईजी भी मेरी मर्जी के लगेंगे। अब फड्डा पड़ा हुआ। मियां साहब उससे चेयरमैनशिप भी लेना चाहते थे पीसीबी की, और नजम सेठी को बनाना चाहते थे। और नजम सेठी जाहिर है पता सबको नवाज शरीफ का कारिंदा है। मोहसिन नकवी ने कहा मैं ना ये छोड़ूंगा ना वो छोड़ूंगा, दोनों काम मैं ही करूंगा। बल्कि जो खबरें आई वो खबरें तो बहुत खतरनाक थी। इसके बावजूद अब तक मियां बरादरान को सियासी तौर पे कह रहा हूं, गुस्सा ना फरमाए मियां साहब, सियासी हया नहीं आई। सियासी लोग तो ठुड्डा मारते हैं ऐसे इक़्तिदार को जिसमें इज्जत ना हो। इज्जत इतनी है कि एक दिन इसहाक डार का नोटिफिकेशन किया कि मामला सारे इसके हाथ में रहेंगे, लेकिन जो वजीर खजाना लाए थे बड़े लोग, दूसरे दिन ही वापस हो गया नोटिफिकेशन, मियां साहब का नोटिफिकेशन वापस हो गया। और शर्मिंदगी शर्मिंदगी, बड़े मियां साहब तो वैसे मुंह छुपा के बैठे हुए, छोटा मियां जो है अवाम का सामना नहीं कर सकता। पता नहीं, मैंने सुना है किसी, वल्लाह आलम सच झूठ क्या है इसमें, मैंने तो उस दिन देख नहीं सका रमज़ान शरीफ की वजह से। 23 मार्च को मियाँ की मौजूदगी में वहां परेड में भी चोर चोर के नारे लग गए। यहाँ एचईसन कॉलेज में मोहतरमा वजीर आला साहबा जाना चाहती थी, बच्चों को पता लगा, वहां एहतजाज हुआ, इमरान खान जिंदाबाद और इमरान खान वजीर आजम के नारे लग गए और इनके चोर चोर के नारे लग गए। उन्होंने रोक दिया। और ये नहीं हो सकता कि शरीफ खानदान आए और मामलात मेरिट पे चलें। ये तमाम इदारों पे कंट्रोल करके मामलात अपनी मर्जी के चलाना चाहते हैं। जिस तरह इन्होंने 16 महीने की इंपोर्टेड हुकूमत में जुल्म सितम किया है ना, कोई कानून नहीं था, FIR झूठी FIR दर्ज कर करके लोगों पे। और तो वहां का प्रिंसिपल जो है को गोरा था एचईसन कॉलेज का, उसने कल इस्तीफा पंजाब हुकूमत पे मुंह पे मारा। उनका ये संभालो अपनी नौकरी। गैरतमंद लोग मियां साहब ऐसे करते हैं। आपको जो 2 3 4 झटके अब तक लग चुके हैं, बाकी कितने लगे हैं उनका तो आपको ही पता है। हमें तो जो खबर आती है या अखबार में छपती है या कहीं सोशल मीडिया पे, उससे पता लगता है ना, लेकिन आपको तो पता है कि अब तक कितने झटके लग चुके हैं। आपको तैयारी ये हो रही है कि आपको फारिग करके मोहसिन नकवी को ही वजीर आजम बना दिया जाए। आपकी मजबूरी है, आप 100 प्याज भी खाएंगे और 100 जूतियां भी खाएंगे, आप सारा कुछ करेंगे, आप उसे जतवाएंगे भी सेनेट में और फिर भुगतेंगे भी। आपको सियासी तौर पे अपनी आबरू बचाने के लिए शरीफ खानदान को यहां इक्तदार वाले रास्ते पे नहीं जाना चाहिए था। अवाम ने जब मुस्तरद कर दिया, अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर उसके बाद इक्तदार में जाने की क्या जरूरत थी। और ऐसा इक्तदार शर्मिंदगी 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 के सिवा कुछ नहीं है। इक्तदार ही इक्तदार है, इख्तियार नहीं है। शाहिद अफरीदी का बड़ा शोर पड़ा हुआ, मेरा तो ज़ाहिर है इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन शाहिद अफरीदी को अपनी मकबूलियत का कोई नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। सुना माफ़ी मांग ली है उसने। ऐसे बयानात देने नहीं चाहिए। जब आपका ये शोबा, आपका मैदान नहीं है तो आप अपना काम करें। क्रिकेट पे आप बयानात दें। आपका जवाई जो है वो टीम का चेयरमैन बना है, अपने कप्तान बना है, और उसने कप्तान बनते लाहौर का बेड़ा गर्क करवा दिया, लाहौर को मैच नहीं कोई जीतने दिया। आप इस पे तवज्जो दें। आप सियासी मामलात पे जाएंगे तो लोग पंजाबी कहते हैं मुद्दा कर देंगे फड़ के। वो मुद्दा मेरा ख्याल उन्होंने आपको कर दिया है। सुना यह है कि माफी तलाफी हो गई है या माफी मांग ली गई है। भारत में इलेक्शन से कबल मुस्लिम दुश्मनी अरूज पर, यह नवाए वक्त की खबर है।
उत्तर प्रदेश में मदारस पर पाबंदी लगा दी गई। मोदी का जुल्म और सितम जारी है और बावजूद बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में मोदी के खिलाफ करारदादें पेश होती हैं, रिपोर्टें पेश होती हैं, लेकिन अमेरिका बहादुर उस पर पाबंदी नहीं लगाता। वहां उनसे इंसानी हकूक भी नजर नहीं आते, मजहबी रवादारी भी नजर नहीं आती। यहाँ पाकिस्तान में चंद कादियानी एजेंट, कादियानी यहाँ बहुत सौखे हैं, पाकिस्तान में मौज मेला करते हैं, लाडले हैं निजाम के। इसके बावजूद शिकायतें हमारी पाकिस्तान की करते रहते हैं इंसानी हकूक की तंजीमों को। ये अमेरिका को नजर आते हैं, ये बरतानिया को भी नजर आते हैं, यूरोप को भी मोदी नजर नहीं आता। मोदी कत्ल करवा रहा है कनाडा और अमेरिका जैसे मुल्कों में, अपने सिख बरादरी के लोगों को कत्ल करवा रहा है, लेकिन कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं है। रमज़ान पाक का महीना है, दुआ करें अल्लाह किसी का ज़मीर बेदार हो जाए, किसी की गैरत जाग जाए मुसलमान मुल्क की। फ़लस्तीनियों पे बेइंतहा जुल्म हो रहा है, छोटा सा इसराइल कोई भी नहीं आगे निकला। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर था, ईरान आएगा, लबनान आएगा, फलाना आएगा, ढिंगड़ा आएगा, सब ऐसे है जैसे मर गए, सकूते मर्ग तारी है, कोई बोलने के लायक नहीं रहा। जवाब देना होगा। वहां एक नौजवान को, मैंने एक बुजुर्ग को देखा, वो एक दिन फरियाद कर रहा था, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत ने हमें तन्हा छोड़ दिया, आपकी उम्मत ने हमारी मदद नहीं की, वो खुराक और पानी के लिए तरस रहे हैं। और मुस्लिम हुक्मरान जो हैं ये आपस में हमें अब अफगानिस्तान के से लड़ाने का मंसूबा बन रहा है। अमेरिका खुद तो जलील होकर वहां से गया 40 साल लड़ाई कर करके, अब जब देखा कि दाल नहीं गली खुद चला गया, लेकिन पाकिस्तान को अब इस आग में झोंकना चाहता है। पाकिस्तानी इदारों से गुजारिश करता हूं कि बड़े ख्याल ध्यान से अपने बड़ों को बिठाएं, उलमा को बिठाएं जिनका असर रसूख है वहां, और उनसे मामला तय करें। किसी सूरत भी अफगान पाकिस्तान नाराजगी भी नहीं होनी चाहिए, लड़ाई तो दूर की बात है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम फरमाए, रमज़ान पाक की बरकतें हमें नसीब फरमाए। ये सुने और सुन के ज़रा इसको सब्सक्राइब भी करते जाया करें और शेयर करते जाया करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके पैगाम।